ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 25 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਦ ਲੀਜਨ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਡਿਗਰੀ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਫੋਰਮਰ ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ USA ਦੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ COVID-19 ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਰੋਜ਼ਵੈਲਟ ਦੁਆਰਾ। USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਰੋਜ਼ਵੈਲਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2018 ਦੀ ਉਹ ਰੀਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18, 19 ਔਰ 20 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 100th ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 77th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਔਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2020 ਆਏਗਾ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 63rd ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਈਨਾ 2018 ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 78 ਤੋਂ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ -7.3% ਫॉर ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 2020-21। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਔਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਲੋਨ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੁਪੀਜ਼ 'ਚ ਰੁਪੀਜ਼ 295 ਕਰੋੜ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਨਾਰਥਰਨ ਆਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫॉर ਔਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਦਾ MSME ਸੈਕਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਚੀਫ ਆਫ 3 ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਰਡਰ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਿਸਟਮ IMSAS ਇਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇਵੀ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ। ਅਸਤਰ MK1 ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ RK ਸਿੰਘ ਭਦੌਰੀਆ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਮੰਤ ਸਨਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਵਿਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਇਨ ਪ੍ਰੇਸ ਆਫ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀਰਨਦਾਨੀ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਚੈਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। USA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਜੋ ਬਿਡਨ। USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੋ ਬਿਡਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤ ਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ
की बनाया गया, मैंबर बनाया गया नैशनल इकनॉमिक काउंसल का। नैशनल इकनॉमिक काउंसल के मैंबर कौन बनाए जाएंगे, भारत रामा मूर्ति। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है टू ड्राफ्ट द फ्रेमवर्क फॉर इनवाइटिंग प्राइवेट प्लेयर्स ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਬਿਲਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਸੈਕਟਰੀ यानी कि गिरिधर अरमा ने। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इंडियन आर्मी के नाल MOU साइन किया गया। इंडियन आर्मी के नाल बैंक ऑफ बड़ौदा ने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर पेंशन सर्विसेज एज मिलिटरी सैलरी पैकेज। ICICI बैंक द्वारा इनफिनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इनफिनाइट इंडिया नाम का प्लेटफॉर्म ICICI बैंक द्वारा, ताकि फॉरन कंपनीज़ नू कह सकते किसी भी तरीके की जी हैल्प है या लोन वगैरह है प्रोवाइड किया जा सके टू एस्टैबलिश और एक्सपेंड बिजनेस इन इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो कि 1911 के बनाया गया सी, मुंबई के हैडकुआटर है। इसके जोड़े CEO ने MD CEO पल्लव मोहापात्रा इन्हों द्वारा कॉन्टैक्टलैस क्रेडिट कार्ड लॉन्च, कॉन्टैक्टलैस डेबिट कार्ड रुपए सिलेक्ट कॉन्टैक्टलैस डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया इन पार्टनरशिप विद NPCI नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी, मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है और दिलीप आसबे इस दे हैड ने। फोनपे announced to introduce voice notification in over 9 vernacular languages for business on its application। फोनपे द्वारा अपनी एप्लीकेशन के उत्ते एक नवा कह सकते हैं कि फंक्शन शुरू किया गया कि वॉइस नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी 9 वर्नेकुलर लैंग्वेजेस दे विच। नेक्स्ट है पाकिस्तान कंडक्टेड शाहीन 9 एक्सरसाइज विद चाइना। शाहीन 9 एक्सरसाइज है जी चाइना के नाल कंडक्ट की जाती है पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान ये एक्सरसाइज बेसिकली 2011 तो कर रहा है। हॉकर कल्चर है जिहड़ा सिंगापुर का, इसनूं यूनैस्को की लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चर हैरीटेज लिस्ट के विच ऐड किया गया। हॉकर कल्चर है सिंगापुर का, इसनूं यूनैस्को की लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हैरीटेज लिस्ट के विच ऐड किया गया। ठीक है जी। कल एक स्टूडेंट कह रहा है कि जी न्यूज़ है थोड़ी पुरानी हो चुकी है। बेसिकली अपनी कोशिश रहती है कि अपनी कोई भी न्यूज़ स्किप ना हो। अगर बाय चांस कोई न्यूज़ स्किप होती है तो उस न्यूज़ को आप बाद दे डिस्कस कर लें। ठीक है, हाँ ये न्यूज़ अपनी स्किप हो गई सी, बेसिकली आप इसनों बाद दे डिस्कस किए। ठीक है, इसी तरीके नाल कह रहे थे कि OTT अवार्ड आप डिस्कस कर चुके हैं। OTT अवार्ड आप डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, स्पोर्ट्स अवार्ड अपने पेंडिंग जरूर चल रहे हैं, आप कल की क्लास के डिस्कस करांगे। ठीक है जी। जोड़े टैनिस के स्पोर्ट्स अवार्ड ने अनाउंस किए गए हैं, ये अपने पेंडिंग चल रहे हैं, वो आप डिस्कस कर लेंगे। इस तो इलावा OTT अवार्ड डिस्कस किए जा चुके हैं। आई थिंक 2 दिन पहले ही आप डिस्कस कर लिए OTT अवार्ड्स। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा सैरेस्ट्रा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि एक स्पैशल एजुकेशन रीजन बनाया जा सके डोलेरा, गुजरात के डोलेरा दे विच। शिघेला बैक्टीरिया इन्फेक्शन केसिस देखे जा रहे हैं केरला दे विच शिघेला एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन केसिस देखे जा रहे हैं, जिस दे लई अलर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट है मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हैडकुआटर कोची केरला दे विच है। इसने एक मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर अनाउंस किया है, एक मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर एक्वा फार्मर्स के लिए विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश दे विच। मेघालय गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटेशन सेंटर ओपन किया गया एंट्री एग्जिट पॉइंट उमिंग रीभोई डिस्ट्रिक्ट दे विच, किस दे लई टू कंट्रोल इनफ्लक्स ऑफ इलीगल इमीग्रेंट्स। इंटरनेशनल गीता फैसटीवल है जिहड़ा कुरुक्षेत्र हरियाणा दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंटरनेशनल गीता फैसटीवल है हरियाणा दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है कुरुक्षेत्र दे विच, और इस साल भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
ओप्पो एक चाइनीज़ कंपनी है, बेसिकली चाइनीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसने सैटअप किया है 5G इनोवेशन लैब। अनाउंस किया गया कि 5G इनोवेशन लैब लगाई जाएगी हैदराबाद तेलंगाना दे विच। हैदराबाद तेलंगाना दे विच ओप्पो की यह पहली लैब होएगी चाइना तो बाहर। नैक्सट है स्टैटिक पोर्शन दे विच नैशनल पार्क डिस्कस कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश दुधवा नैशनल पार्क उत्तर प्रदेश दे विच है। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, गंगोत्री नैशनल पार्क, गोविंद नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स नैशनल पार्क उत्तराखंड दे विच। वैस्ट बंगाल बक्सा जल्दापरा सुंदरबन न्योरा, बक्सा जल्दापरा सुंदरबन और न्योरा नैशनल पार्क वेस्ट बंगाल दे विच। त्रिपुरा क्लाउडेड लियोपार्ड नैशनल पार्क और राजा बड़ी नैशनल पार्क। तेलंगाना की गल करते हैं महावीर हरीना और कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी। महावीर हरीना और कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नैशनल पार्क्स ने जिहड़े ये दोनों कित्थे ने तेलंगाना दे विच ने। ठीक है जी, अज कह सकते कि एक स्लाइड है जिहड़ी नैशनल पार्क्स की, इसनूं आपां 2 दिन डिस्कस करते हैं तो कल भी यही डिस्कस करांगे। इस तो बाद अपने नैशनल पार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं चाहो तो मैनूं दस सकते हो कि नैक्सट इस तो बाद स्टैटिक पोर्शन दे विच की स्टडी करना चाहते हो। ठीक है जी, वही चीज़ आप स्टडी कर लाँगे। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे। नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे, नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे जिहड़ा कल के दिन ऑबजर्व किया गया, यानी कि 24 दिसंबर 24 दिसंबर नूं नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑबजर्व किया गया। इस तो इलावा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे भी आप डिस्कस किया हुआ, यह मार्च के ऑबजर्व किया गया 15 मार्च नूं। 15 मार्च 2020 ऑबजर्व किया गया नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे, सॉरी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, और नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर नूं। ठीक है, बेसिकली कंज्यूमर के जो राइट्स वगैरह होंगे ने उसके बारे इसके लिए अवेयरनेस दी जाती है। ठीक है जी, कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह भी बनाई जाती ने। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अच्छा अज की गल करते हैं सब तो पहले कि 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर एक तक क्रिसमस है। ठीक है, एक होर इंपोर्टेंट दिन अगर इंडिया के परसपैक्टिव के देखिए तो एक होर इंपोर्टेंट दिन है, आप इसनूं कल के सैशन के डिस्कस करांगे। ठीक है, 25 दिसंबर काफ़ी इंपोर्टेंट दिन है अपने लिए, आप कल के सैशन के डिस्कस करांगे। हल्का दस देना गुड गवर्नेंस डे है, गुड गवर्नेंस डे है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की अगर आप गल करिए, बाकी ऑप्शंस आप काफ़ी बार डिस्कस किए हुए हैं, दोबारा डिस्कस नहीं करांगे। कमेंट बॉक्स में तुसीं दसने ने 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर, इन्हां दे विचों किहड़े दिन आपने किस दिन ऑबजर्व किए सी। नैक्सट है विच इंडियन म्यूजिशियन हैज़ वॉन UK आइकन अवार्ड 2020। UK आइकन अवार्ड 2020 है जिहड़ा ये किहड़े इंडियन म्यूजिशियन नूं दिता गया, ये दिता गया शंकर महादेवन द्वारा एक अवार्ड दिता गया है UK आइकन अवार्ड 2020। ठीक है जी, इंडियन म्यूजिशियन ने याद रखांगे। इस तो इलावा AR रहमान का नाम इंपोर्टेंट बनेगा बाफ्टा, अगर तुहानूं याद आंदा होवे बाफ्टा। ब्रिटिश अकैडमी फिल्म एंड टैलीविजन अवार्ड्स ने जिहड़े ये बाफ्टा है जिहड़ा बाफ्टा का हैडकुआटर लंडन दे विच है, इन्हां द्वारा की किया गया सी AR रहमान नूं अपॉइंट किया गया सी। किस दे लिए अपॉइंट किया गया सी? बाफ्टा का एक इनीशिएटिव है उस दे लिए अपॉइंट किया गया सी। इनीशिएटिव का नाम तुसीं दसोगे, इनीशिएटिव किस करके सीगा, मैं दस दिना कि जिस दे अंडर 5 स्टूडेंट्स नूं 5 परसनस नूं हर साल सिलैक्ट किया जाता है, जिन्हां दे विच कोई अनोखा टैलेंट हुंदा उसनूं नरिश करन दे लई सिलैक्ट किया जाता है। ठीक है जी, सिलैक्ट करन दे लई इंडिया दे विचों AR रहमान नूं अपॉइंट किया गया सी। ठीक है जी, सिमिलर तरीके नाल ये जिहड़ा इनीशिएटिव है UK दे विच भी है बाफ्टा द्वारा, और चाइना दे विच भी लॉन्च किया जा चुका है। 2020 दे विच इंडिया दे विच लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इनीशिएटिव का नाम कमेंट बॉक्स दे विच दसना है। नैक्सट है किलोया वोल्केनो। किलोया वोल्केनो है जिहड़ा एक काफ़ी फेमस वोल्केनो है। बेसिकली डायरैक्टली जियोग्राफी के परसपैक्टिव दे विच या स्टैटिक के परसपैक्टिव दे विच पूछा जा सकता है कि किहड़े ओशियन दे विच है। ठीक है, दूसरा इसकी लोकेशन कित्थे है, तो इसका आंसर है पैसिफिक ओशियन।
ठीक है। मेनली जिहड़ा पैसीफिक ओशियन है, पैसीफिक ओशियन दे भी नॉर्थ अमेरिका दे साइड, नॉर्थ अमेरिका दे साइड जिहड़ा साइड दे विच एक आइलैंड है हवाई, जिहड़ी हवाई है, हवाई दे विच है, हवाई दे विच है कोलेया वोल्केनो। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ दे विच रहिंदा है। अगर आपां गल करदे हां पिछले 50 या 60 सालां दी, तां उस दे विच तकरीबन 35 या 40 बार यह इरप्ट हो चुका है। ठीक है, इस करके यह न्यूज़ दे विच रहिंदा है और रिसेंटली भी इसे करके न्यूज़ दे विच रहा है कि यह इरप्ट होया वोल्केनो, किलोया वोल्केनो कित्थे है, पैसीफिक ओशियन दे विच है। ठीक है जी, याद रखांगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ विराट कोहली इन लेटेस्ट ICC T20 रैंकिंग्स। ICC की गल करते हैं पहले कि ICC दुबई के हैडकुआटर है, 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी, ਆਪਾਂ डिस्कस किया होया। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ICC तो एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ पूछा जा रहा है कि ICC ਜਿਹੜੇ हैड ने वो कौन ने, ग्रेग बार्कली रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने पूछे जा रहे हैं। इस तो इलावा विराट कोहली की गल करते हैं, विराट ICC की रैंकिंग्स अनाउंस की गई। इस दे विच विराट कोहली किनवें नंबर पर चले गए हैं, 7वें नंबर पर चले गए हैं। फर्स्ट नंबर पर सीगे, अगर आप गल करते हैं कुछ टाइम पहले की, तो इन्हों की रैंकिंग चेंज हुई है तो सीधा 7वें नंबर पर चले गए हैं। रैंक काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होया। इस तो इलावा ICC के ही अगर कुछ इवेंट्स की गल करते हैं, आप सारे के सारे इवेंट्स डिस्कस किए हुए हैं। लिस्ट भी प्रोवाइड की जा चुकी है, एक पूरी स्लाइड के टेबल बना के लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। याद रखांगे सारे इवेंट्स इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी, जिस इंडिया भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, याद रखांगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज मेंस टीम इन हॉकी गिवन बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट रहेगा बेसिक। अच्छा, विराट कोहली बारे एक चीज़ दसनी स्किप हो गई है कि विराट कोहली की अगर आप गल करते हैं, विराट कोहली नूं 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ खेल रत्न अवार्ड दिता गया सी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विराट कोहली नूं खेल रत्न कदों दिता गया सी, तो 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ और 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ पद्म श्री। ठीक है जी, इसी तरीके नाल अगर इस साल के खेल रत्न की गल करते हैं तो क्रिकेट के विच रोहित शर्मा नूं दिता गया सी, याद रखांगे। ठीक है जी, हॉकी रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि हॉकी की इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की गल करते हैं, लॉजेन स्विट्जरलैंड के विच हैडकुआटर है। लॉजेन स्विट्जरलैंड के विच हैडकुआटर है। इसने रैंकिंग जारी की। इंडियंस मैन टीम की जी रैंकिंग है वो किनवें नंबर पर रही, 4th नंबर पर। इंडियंस मैन टीम किनवें नंबर पर रही है, वर्ल्ड के विच 4थे नंबर पर रही है। तो फर्स्ट नंबर पर किहड़ी कंट्री है, बेल्जियम है। बेल्जियम की टीम सब तो फर्स्ट नंबर पर रही। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हैडकुआटर लॉजेन स्विट्जरलैंड के विच और हैड नरेंद्र बत्रा ने, नरेंद्र बत्रा ने। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया के हैड भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, मणिपुर तो बिलोंग करते सी। इंपोर्टेंट रहेगा, मणिपुर तो बिलोंग करते सी हॉकी इंडिया के हैड। नाम ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं वूमेंस क्रिकेट की, वूमेंस टीम की, वूमेंस टीम है जी, वूमेंस हॉकी टीम की जी रैंकिंग रही है वो किनवें नंबर पर रही है, वो 9वें नंबर पर रही है। ठीक है, इंडियन मेंस टीम 4थे नंबर पर, इंडियन वूमेंस टीम 9वें नंबर पर। वूमेंस की टीम तो किहड़ी कंट्री ने टॉप किया, तो नीदरलैंड ने टॉप किया है। किहड़ी कंट्री ने टॉप किया है, नीदरलैंड द्वारा टॉप किया गया। ठीक है जी, इस तो इलावा 2023 का मेंस वर्ल्ड कप, याद रखांगे, इंडिया होस्ट कर रहा है हॉकी का उड़ीसा के विच। कित्थे होस्ट कर रहा है, उड़ीसा के विच। उड़ीसा के विच भी 2 स्टेडियम्स चूज किए जा चुके हैं, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं 2022 के विच वूमेंस हॉकी वर्ल्ड कप, वूमेंस हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन नीदरलैंड के नाल मिलकर होस्ट कर रहा है। स्पेन और नीदरलैंड दोनों कंट्रीज 2022 का वर्ल्ड कप, वूमेंस वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा मेंस हॉकी टीम की अगर आप गल करते हैं, मेंस हॉकी टीम के कैप्टन ने मनप्रीत सिंह और वूमेंस हॉकी टीम के कैप्टन ने रानी रामपाल नूं रिसेंटली खेल रत्न अवार्ड दिता गया सी, इंपोर्टेंट रहेगा। अच्छा, मनप्रीत सिंह ने भी रिसेंटली कोई अवार्ड दिता सी। मनप्रीत सिंह ने जिहड़े इन्हां ने आई थिंक एथलीट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर समथिंग इस तरीके का अवार्ड दिता सी मनप्रीत सिंह ने। कमेंट बॉक्स में भी दसना किहड़ा अवार्ड इन्होंने दिता गया सी। नेक्स्ट है
हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अयोध्या? अयोध्या नाम की एक बुक रिलीज़ की गई है। रिलीज़ किन्ना द्वारा की गई है? चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। अगर आप महाराष्ट्र की गल करते हैं, इस टाइम जो चीफ मिनिस्टर ने उद्धव ठाकरे ने इन्हों तो पहले जोड़े सीगे वो देवेंद्र फडणवीस सीगे। इन्हों द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई, इस करके ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगी। इस बुक नू नाम है अयोध्या, लिखिया किन्ना ने है तो माधव भंडारी द्वारा इस बुक नू लिखिया गया। ठीक है जी, ऑथर कौन ने? माधव भंडारी ने। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस भी आप डिस्कस किए हुए हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो शिव थन्नू पिल्लई बिल्कुल लास्ट वीक ही डिस्कस किया। 40 ईयर्स विद कलाम द अनटोल्ड स्टोरीज, इस बुक का नाम सीगा और लिखी किन्ना ने सी? शिव थन्नू पिल्लई ने। रमेश पोखरियाल निशांक इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर ने, इन्हों द्वारा रीसेंटली बुक लिखी गई है पायनीर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद। आई थिंक महर्षि अरविंद के नाम के उत्ते इस बुक में लिखा गया सी पायनीर ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा, इन्हों के बारे क्वेश्चन पूछा, इन्हों रीसेंटली एक अवार्ड भी दिता गया। इन्हों रीसेंटली एक इंपोर्टेंट अवार्ड दिता गया। आई थिंक नवंबर के आप डिस्कस किया। कमेंट बॉक्स के अवार्ड का नाम दसना। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे कमेंट बॉक्स के आंसर नहीं देंगे ने, कमेंट बॉक्स के आंसर जरूर दिया करो। अमीश त्रिपाठी की गल करते हैं। अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय दोनों ने मिलकर बुक अनाउंस की है धर्म नाम की बुक है जी, अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय। इस तो इलावा अमीश त्रिपाठी की एक होर बुक आप पहले डिस्कस की हुई है लैजेंड्स ऑफ सुहेल देव, ये भी याद रखांगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच FDI in direct to home service including extension of license period from 10 to 20 years and also reduced license fees। दो इंपोर्टेंट तरीके के क्वेश्चन इतों पूछे जा सकते हैं। सब तो पहले कि जी बेसिकली की होंगी है कि FDI यानी कि फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट, फुल फॉर्म इंपोर्टेंट रहेगी फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली फॉरन कंट्रीज़ हो गई या फॉरन कंपनीज़ हो गई, इन्हों द्वारा इंडिया के इन्वेस्टमेंट की जाती है, डिफरेंट फील्ड के इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इसके लिए हर एक फील्ड के एक पर्टिकुलर परसेंटेज गौरमेंट द्वारा फिक्स की जाती है कि इन्नी % तक ही अमाउंट इन्हों द्वारा फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो इस जी DTS सर्विस है, DTS सर्विस यानी कि जो अपना घर के TVs वगैरह होंगे ने, तो इसके लिए जी होम सर्विस होंगी है डायरैक्ट टू होम, DTS की फुल फॉर्म है। इसके लिए जी FDI की अमाउंट है वो किन्ने % कर दी गई है? 100% की अप्रूवल दे दी गई है। ठीक है, यानी कि हुण 100% FDI जी लीती जा सकती है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इस तो इलावा एक होर क्वेश्चन इतों ही पूछा जा सकता है कि जी लाइसेंस का पीरीयड है वो किन्ना कर दिता गया? वो 20 साल कर दिता गया। पहले 10 साल का लाइसेंस दिता जाता सी, हुण उस लाइसेंस नूं 20 ईयर्स की एक्सटेंशन दे दी गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट है RBI हैज़ अप्रूव्ड संदीप बत्रा ने जोड़े एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं किहड़े बैंक के? RBI द्वारा अप्रूवल दी गई है 3 साल की टर्म के लिए एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अपॉइंट किए जाएंगे संदीप बत्रा किहड़े बैंक के? ICICI बैंक के। सैकेंड ऑप्शन ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अपॉइंट किए जाएंगे। ICICI बैंक की गल करते हैं, WhatsApp के उत्ते सर्विस शुरू करने वाला फर्स्ट बैंक बनया सी ICICI बैंक। इस तो इलावा सैटेलाइट डाटा अनाउंस किया गया सी ICICI बैंक द्वारा कि वह विलेजिस के जी लैंड है उन्होंने डाटा रिकॉर्ड करेगी सैटेलाइट डाटा के अनुसार। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ICICI बैंक द्वारा ही होम उत्सव एक इंपोर्टेंट इनीशिएटिव लॉन्च किया गया सी, जिप ड्राइव इनीशिएटिव भी लॉन्च किया गया सी, याद रखांगे। अच्छा, HDFC बैंक की गल करते हैं, हम हार नहीं मानेंगे इनीशिएटिव इंपोर्टेंट रहेगा। होम इन्हों द्वारा लॉन्च किया गया सी HDFC बैंक द्वारा समर ट्रीट्स कैंपेन इंपोर्टेंट रहेगा HDFC बैंक द्वारा। हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग है जोड़े लिरिक्स इंपोर्टेंट रहेंगे प्रसून जोशी द्वारा और म्यूजिक AR रहमान द्वारा।
यस बैंक, लोन इन सेकंड और लोन ओवर सिक्योरिटीज़, लोन इन सेकंड और लोन ओवर सिक्योरिटीज़, ये दो इंपोर्टेंट इनिशिएटिव किहड़े बैंक दे ने? यस बैंक दे ने। एक्सिस बैंक, लिबर्टी ओवर सेविंग अकाउंट, लिबर्टी ओवर सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक द्वारा, इस तो इलावा एक्सिस बैंक द्वारा ही एक्सा चैटबॉट असिस्टेंट भी लॉन्च किया गया सी। ठीक है जी। इस तो इलावा होर भी काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने बैंकिंग के रिलेटेड आप डिस्कस कीतियां हुई ने, इन्होंने रिवाइज करते रहा करो। जरूरी नहीं कि ये बैंकिंग के रिलेटेड न्यूज़ ने तो बैंक के एग्जाम के आएगी। ठीक है, बेसिकली जी संदीप बत्रा है, इन्होंने अपॉइंटमेंट के किसी भी एग्जाम के पूछा जा सकता है कि रीसेंटली ये किहड़े बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अपॉइंट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन पूछे गए थे कि शशिधर जगदीशन नूं किहड़े बैंक के MD CEO के रूप के अपॉइंट किया गया। ठीक है, या फिर पूछा गया सी इस तो पहले जिहड़े आदित्य पुरी सीगे उन्हां तो भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुके। इसरो की अगर आप गल करते हैं, इसरो एक रीजनल अकैडमिक सेंटर, रीजनल अकैडमिक सेंटर है जिहड़ा बनाने जा रहा है स्पेस के लिए। रीजनल अकैडमिक सेंटर स्पेस के लिए इसरो बना रहा है किहड़ी IIT दे विच टू फैसिलिटेट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजैक्ट्स एट द इंस्टीट्यूट। इसरो द्वारा अनाउंसमेंट किया गया किहड़ी IIT दे विच बनाया जा रहा है, तो इसनूं बनाया जा रहा है IIT वाराणसी। IIT वाराणसी के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया, इसनूं बनाया जाएगा एक रीजनल अकैडमिक सेंटर, एक रीजनल अकैडमिक सेंटर फॉर स्पेस। ठीक है जी, याद रखांगे। अच्छा, वाराणसी कित्थे है? उत्तर प्रदेश के विच है, ये तो हर एक नूं पता ही होएगा। वाराणसी UP तो लोक सभा MP ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस तो इलावा IIT रुड़की की गल करते हैं तो प्राण वायु वेंटीलेटर है जिहड़ा ये डेवलप किया गया सी एम्स के नाल मिलके IIT रुड़की द्वारा। प्लस रिसेंटली यूनिसेवियर डिवाइस भी लॉन्च किया गया सी। IIT दिल्ली द्वारा कोरोसोर किट काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी, लॉन्च की गई सी। IIT गांधीनगर चेस्ट एक्सरे इंपोर्टेंट रहेगा, सब तो पहले चेस्ट एक्सरे IIT गांधीनगर द्वारा। इस तो इलावा प्रोजेक्ट आईसैक भी लॉन्च किया गया सी। IIT रोपड़ की गल करते हैं, वार्ड बोट नाम का रोबोट बनाया गया सी IIT रोपड़ द्वारा COVID-19 दौरान पेशेंट्स नूं मेडिसिन सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन एक्सीलेंस इज द प्रेस्टिजियस CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है। इसकी गल करते हैं तो इसका हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है और इसके हैड ने जिहड़े इसके हैड कौन ने? उदय कोटक ने। उदय कोटक अपॉइंट किए गए सी CII दे हैड। इस तो इलावा कोटक महिंद्रा बैंक के भी हैड ने और जिहड़ा कोटक महिंद्रा बैंक है इसदे इन्हों टर्म इन्हों की रीसेंटली 3 साल की दोबारा इंक्रीज की गई है RBI द्वारा। ठीक है जी। अच्छा, RBI रिलेटेड क्वेश्चन पूछना सी, स्किप हो गया कि जो RBI है इसने भी रीसेंटली एक सेंटर अनाउंस किया सी मनी के लिए, बेसिकली करंसी नोट्स के लिए जिथे स्टोरेज किया जा सके। तो किहड़ी स्टेट और किहड़ी सिटी दे विच अनाउंस किया गया सी रीसेंटली आप डिस्कस किया होया, कमेंट बॉक्स के आंसर देने। आंसर की गल करते हैं, इत्थे NTPC है, नैशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC नैशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC का हैडकुआटर दिल्ली के विच है और एक इंपोर्टेंट चीज़ गुरदीप सिंह याद रखांगे इसके हैड ने। NTPC के हैड कौन ने? गुरदीप सिंह ने। इस तो इलावा NHAI सुखबीर सिंह संधू इसके हैड ने, दिल्ली के विच हैडकुआटर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हैडकुआटर दिल्ली के विच और अरविंद सिंह इस दे हैड ने। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। FICCI की गल करते हैं, न्यू दिल्ली के विच ही FICCI का भी हैडकुआटर है और FICCI के हैड संगीता रेड्डी नहीं है। संगीता रेड्डी FICCI के हैड सी। इन्हों तो बाद कौन अपॉइंट किए गए हैं? उदय शंकर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, इत्थे कन्फ्यूज नहीं होना। FICCI के जिहड़े हैड ने उदय शंकर रीसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, नाम इंपोर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्ड मर्जर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विद नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
बेसिकली कल दे एग्जाम न्यूज़पेपर दे विच काफ़ी इंपोर्टेंट आर्टिकल सीगा पूरा बड़ा कि नैशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जिहड़ा नैशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जिहड़ा इसका हैडकुआटर कित्थे है मुंबई दे विच इन्हां दे हैडकुआटर इंपोर्टेंट बनणगे सब तो पहले NFDC का हैडकुआटर मुंबई दे विच है कैबिनेट ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट की जिन्नी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशनस ने फिल्म इंडस्ट्री की 4 ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस की गई चारां नूं मर्ज किया जा रहा है NFDC दे नाल नैशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दे नाल ठीक है जी किहड़ी 4 ऑर्गेनाइजेशन फिल्म डिवीजन डायरैक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल नैशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ठीक है जी फिल्म डिवीजन का हैडकुआटर मुंबई दे विच है डायरैक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल का हैडकुआटर दिल्ली दे विच है डायरैक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल हैडकुआटर दिल्ली दे विच है फिल्म डिवीजन मुंबई दे विच है नैशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया इसका हैडकुआटर पुणे दे विच है मुंबई महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का हैडकुआटर भी मुंबई दे विच ठीक है जी इंपोर्टेंट बनेगा हैडकुआटर सब तो पहले इंपोर्टेंट बनेंगे पूछे जा सकते हैं डायरैक्टली इस तो इलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन्नी फर्म्स नूं मर्ज किया गया था 4 का मर्जन अनाउंस किया गया कैबिनेट द्वारा नैशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स इंडिया का पहला डिजीबॉक्स एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसके अंदर बेसिकली 2 GB की स्पेस दी जा रही है जिसके अपना डाटा आप स्टोर कर सकते हैं ठीक है जी इस दे लई किन्ना ने बनाया इसनूं बनाया गया है नीति आयोग द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया ठीक है जी न्यूज़ काफ़ी हाईलाइटेड रही सी बेसिकली जिहड़े नीति आयोग के CEO ने अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO ने इन्होंने इसके उत्ते रजिस्टर भी किया और यह इसके पहले यूज़र बने ने ठीक है जी हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पर फिर भी नॉलेज पर्पस तो याद रखेंगे कि डिजी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग द्वारा की बनाया गया एसेट प्लेटफॉर्म का नाम की है डिजीबॉक्स या फिर डिजीबॉक्स नूं किन्ना द्वारा बनाया गया था नीति आयोग द्वारा नीति आयोग 2015 के विच बनाया गया सी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाइस चेयरमैन की गल करते हैं राजीव कुमार ने इस तो इलावा CEO का नाम आप डिस्कस कर लिया अमिताभ कांत इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस दे विच सिडबी का हैडकुआटर सेबी का हैडकुआटर सिडबी लखनऊ UP दे विच सेबी का हैडकुआटर मुंबई महाराष्ट्र दे विच कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री किन्ना लवी है तो रविशंकर प्रसाद कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है इस तो इलावा लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने IT मिनिस्ट्री भी होल्ड कर रहे हैं और पटना बिहार तो लोकसभा MP ने रविशंकर प्रसाद नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ पास्ड तिबेतियन पॉलिसी एंड स्पोर्ट एक्ट 2020 TPSA 2020 शॉर्ट फॉर्म दे विच इसनूं TPSA 2020 कहा जा रहा है इसनूं किहड़ी कंट्री द्वारा पास किया गया USA द्वारा इसनूं पास किया गया बेसिकली डिटेल दे विच इस न्यूज़ में डिस्कस करते हैं कि क्यों पास किया गया और बाकी ऑप्शन रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने सब तो पहले USA ने तिबेतियन पॉलिसी और सपोर्ट एक्ट 2020 नूं पास किया जिसके अंडर की किया जाएगा कि तिबेतियन बुद्धिस्ट ने जिहड़े बेसिकली अगर तिब्बत की गल करते हैं तिब्बत एक ऐसी कंट्री है जिहड़ी कि इंडिपेंडेंट रहना चाहती है पर चाइना उसके उत्ते अपनी कह सकते हैं कि थोपदा है अपने आप नूं और कहता है कि वन चाइना पॉलिसी का असीं इस्तेमाल करांगे ठीक है तो तिब्बत दे विच जिहड़ी मेन पोस्ट की गल करते हैं दलाई लामा की एक पोस्ट है ठीक है इस टाइम 13th दलाई लामा चल रहे हैं 14th दलाई लामा चल रहे हैं और 15वें अपॉइंट किए जाने ने तो जिहड़े 15वें अपॉइंट किए जाने ने वो बेसिकली चाइना हर एक बार इंटरफेरेंस करता है तो इंटरफेरेंस ना होवे इस दे लई तिब्बतन पॉलिसी और सपोर्ट एक्ट 2020 अनाउंस किया गया है USA द्वारा जिसके अंडर तिब्बतन बुद्धिस्ट नूं राइट दिता जा रहा है कि दलाई लामा नूं बिना किसी इंटरफेरेंस तो चाइना की बिना किसी इंटरफेरेंस तो सिलेक्ट कर सकणगे इस तो इलावा USA दे विच एक नवा बीमारी देखी जा रही है नाइगीना फेलवेरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा
बेसिकली एक अमीबा देखा जा रहा है जो कि फ्रैश वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और ਇਹ ਕੀ ਹੈ इसनूं ब्रेन ईटिंग अमीबा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ स्लो कह सकते हैं कि इसके काफ़ी ज़्यादा केसिस देखे जा रहे हैं तकरीबन 400 तो 500 केसिस देखे जा चुके हैं USA ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हां दी कुछ ही दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ हो गई है ठीक है जी। इस करके अलर्ट जारी किया गया USA ਦੇ ਵਿੱਚ याद रखांगे कि यह बीमारी नाइगीना फैलवेरी ये की है एक अमीबा है। नेक्स्ट है UAE वर्ल्ड द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है जोड़ा अल डाफरा सोलर पावर प्लांट ये कितने सैटअप किया जा रहा है UAE दे विच 2 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी होएगी और 2021 दे विच कि कहा जा रहा है कि इसनों इनोग्रेट कर दिता जाएगा। नैक्सट अच्छा इंडिया के अगर लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट की गल करते हैं कितने है रेवा दे विच रेवा MP दे विच तुहानूं याद होएगा कुछ टाइम पहले ही इसनों इनोग्रेट किया गया सी ठीक है रेवा मध्य प्रदेश। अच्छा इसी दे नाल इंडिया का लार्जेस्ट सोलर ट्री की गल अच्छा वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर ट्री की गल करते हैं वह भी इंडिया के विच है दुर्गापुर वैस्ट बंगाल दे विच ये भी रीसेंटली बनाया गया सी याद रखांगे। नैक्सट है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा अपनी गवर्नमेंट नूं कोलैप्स किया गया जिस तरीके नाल आपां ने नेपाल के बारे डिस्कस किया सी कि नेपाल की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई है इलैक्शनस 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗੀ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਜਾਂ ਲੰਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ IPL ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ उस तरीके नाल इत्थे लंका प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज की जाती है। इंपोर्टेंट इस करके बनेगा क्योंकि इसका फर्स्ट एडिशन सीगा किन्ना ने जितया जैफना स्टालियंस द्वारा इसनूं जितया गया है किन्ना नूं हरा के गेल ग्लैडिएटर्स नूं हरा के फर्स्ट एडिशन है इस करके इंपोर्टेंट रहेगा याद रखांगे। अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग की गल करते हैं किन्ना ने जीती सी मुंबई इंडियंस ने जीती सी याद रखांगे भी। नैक्सट है which state government has unveiled the farmer registration and unified beneficiary information system यानी कि फ्रूट्स इन्होंने शॉर्ट फॉर्म के इसनूं फ्रूट्स नाम दिता है फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनीफाइड बेनीफिशरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके अंडर एक गवर्नेंस पोर्टल है जिहड़ा कि लैंड के रिलेटेड फार्म लैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा और लोन डिटेल्स प्रोवाइड करवाएगा। केड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कर्नाटका द्वारा इसनूं शुरू किया गया ठीक है जी याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं कर्नाटका की ही तो रीसेंटली एक चीज़ इंपोर्टेंट याद रखांगे कर्नाटका ने अपना 31वां डिस्ट्रिक्ट बनाया सी विजयवाड़ा नाम का 31वां डिस्ट्रिक्ट भी कर्नाटका ने बनाया सी ठीक है जी इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड 2 इंपोर्टेंट होर न्यूज़ ने वह भी डिस्कस करते हैं। उड़ीसा द्वारा अनाउंस किया गया कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है जोड़ा ये डिफरेंट लैब्स अलग अलग रेट के उत्ते किया जा रहा सी तो एक सिंगल अमाउंट अनाउंस कर दी कि सिर्फ 100 रुपये के ही किया जाएगा। इस तो इलावा ये न्यूज़ उड़ीसा रिलेटेड इंपोर्टेंट रहेगी। DRDO द्वारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ITR रेंज उड़ीसा आप काफ़ी बार डिस्कस की है कि जो अब्दुल कलाम आइलैंड है जिसनों पहले व्हीलर आइलैंड के नाम तो जाना जाता सी उत्थे टेस्ट फायर किए जाते हैं DRDO द्वारा। तो DRDO ने एक मिसाइल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसनों शॉर्ट फॉर्म के MRSAM कहा जाता है इसका स्ट्राइक रेंज टेस्ट फायर किया 100 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है और इसनूं इजराइल की हैल्प के नाल बनाया गया सी। इत्थे एक इंपोर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि जी डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स ने या तो वो कली इंडिया डेवलप कर रही है इंडिजीनियसली या फिर इंडिया किसी भी कंट्री की हैल्प के नाल बना रही है या इंडिया किसी भी कंट्री तो बोरो कर रही है ठीक है। इत्थे डिफरेंस पता होना चाहिए कि किहड़ी चीज़ इंडिया बना रही है किहड़ी चीज़ इंडिया किसी कंट्री की हैल्प के नाल बना रही है और किहड़ी चीज़ इंडिया बोरो कर रही है।
फॉर एग्जाम्पल बोरो करने वाली चीज़ों की कंट्री इंपोर्टेंट बनती है कि ये चीज़ किहड़ी कंट्री तो लिती गई सी। हैमर मिसाइल हो गया फ्रांस तो, रफाल हो गए फ्रांस तो, अपाचे चिनूक हैलीकॉप्टर्स हो गए यूएसए तो, स्पाइक मिसाइल होगी इजराइल तो। ठीक है, सिमिलर तरीके नाल अगर किसी कंट्री की हैल्प के नाल यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल होगी रशिया की हैल्प के नाल, इसी तरीके नाल जिहड़ी MRSAMA है ये इजराइल की हैल्प के नाल इंडिया ने डेवलप की हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट है तमिलनाडु गौरमेंट द्वारा जलीकट्टू फैसटीवल है जिहड़ा ये आपां दस्सिया सी कि कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस उत्ते रोक लगाई गई सी। हुण इसनूं कहा गया कि इसनूं अलाउ किया जा रहा है विद रिस्ट्रिक्शनस दे नाल इसनूं अलाउ किया जा रहा है। तमिलनाडु दे विच पोंगल फैसटीवल है जिहड़ा काफ़ी इंपोर्टेंट है, ऑबजर्व किया जाता है और पोंगल के तीसरे दिन जलीकट्टू ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, और इंपोर्टेंट रहेगा जलीकट्टू मूवी इंपोर्टेंट रहेगी क्योंकि इसनूं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया 93rd एडिशन के लिए इंडिया वालों ऑफिशियल एंट्री। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।